Good morning, student. Today we will try to understand the electromagnetic induction in greater depth, student. Okay, how the current is induced, student. So, student, already we have seen whenever there is a change. See, whenever there is a change in magnetic field, across a coil, this change is very important, student. Induced current is generated. Induced current is generated if the coil is closed. So student, here what you have to understand is how this current comes is, suppose there is a conductor of length L and this conductor is moved in a magnetic field. But how it is moved, that you have to understand, student. Suppose the magnetic field is like this. The magnetic field is inside the board. So student, how see? The magnetic field inside means this red pen is magnetic field inside. See this, and my conductor is this. So I am moving this. See, it is cutting. It should cut, student. See, it is cutting the field. That is the main part. It should cut. Then the induced EMF will come, student, on the basis of Fleming's right hand rule. See student, motion of the conductor upward. This is magnetic field inside. See, induced current, induced EMF. If it is closed, then current will come. Now if I place this conductor like this, student, this is magnetic field. I place the conductor like this. Now I am moving this way. Now what is the situation? See, again the magnetic field is this red pen. Now my conductor is this, student. See, I am moving. Now again it is cutting. See, again the induced current will come. Induced EMF will come. But student, if suppose magnetic field is this, this is field, and my conductor is kept like this. This is conductor, and I am moving this way. Now what is happening, students? See, this is magnetic field. My conductor is also this. It is not cutting. See, it is not cutting. In this case, student, no EMF. This you have to understand. When induced current will come, when induced EMF will come, it should cut. Means the length of the conductor. Condition, student. The length of the conductor moved should be perpendicular to magnetic field. This you have to remember, student. Then the induced EMF will come. Then only the induced EMF will come, student. Now I will explain you with the help of another example, student. Suppose we have an arrangement
we have this kind of coil, student. It is a coil wound on a cylindrical frame, student. ओके, सिलेंड्रिकल में एक कॉइल बनाया गया है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बाहर से अप्लाई किया है स्टूडेंट. This is magnetic field, student. अब स्टूडेंट देखिए, ये कॉइल है PQRS. दिस इज द शाफ्ट विच इज कनेक्टेड. ये एक शाफ्ट है, इससे बंधा हुआ, इससे अपन रोटेट कर सकते हैं स्टूडेंट बाय द हेल्प ऑफ ए टरबाइन. ये इससे रोटेट हो रहा है. मान लो ये बाहर आ रहा है, सो इट इज कमिंग आउटसाइड स्टूडेंट. तो जब ये बाहर आ रहा है स्टूडेंट, सी इट इज लाइक दिस. ये है कॉइल स्टूडेंट, ये ऐसे आ रहा है स्टूडेंट, और मैग्नेटिक फील्ड हमारा ऐसे है पहले से. देखो स्टूडेंट, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, देखो स्टूडेंट ये कट कर रहा है, ये देखो ये काट रहा है मैग्नेटिक फील्ड को. तो कट कर रहा मीन्स इसमें स्टूडेंट इंड्यूस्ड करंट आएगा, और जब ये बाहर आ रहा है स्टूडेंट, आप ध्यान से देखो, इसमें करंट ऐसा आएगा स्टूडेंट. आप फ्लेमिंग्स का राइट हैंड अप्लाई करो. देखिए स्टूडेंट, ये मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, मोशन बाहर है, देखो करंट ऊपर आ रहा है. देखो करंट ऊपर आ रहा है, ये बाहर आ रहा है और ये अंदर जा रहा है स्टूडेंट. इट इज गोइंग इनसाइड. इसमें करंट ऐसा फ्लो होगा. अब स्टूडेंट इस करंट को हम बाहर लेंगे कैसे, तो उसका अरेंजमेंट देखिए स्टूडेंट. एक रिंग इसके साथ अटैच्ड है, और दूसरा रिंग स्टूडेंट ये शाफ्ट है, दूसरा रिंग इसके साथ अटैच्ड है. ये शाफ्ट है, देखो एक रिंग यहां अटैच इसके साथ, और एक रिंग यहां अटैच है स्टूडेंट. यहां पे स्टूडेंट ऐसे कार्बन ब्रश हम रख दें स्प्रिंग के साथ दबा के. ब्रश R1 सॉरी C1, यहां एक कार्बन ब्रश अटैच कर दें स्टूडेंट. ये है रिंग R1, ये है रिंग R2. ये वाली रिंग इसके साथ अटैच है स्टूडेंट, और ये वाली रिंग इसके साथ अटैच है, और ये घूम रही है स्टूडेंट. और बाहर से हम अपना सर्किट कंप्लीट कर लें. तो स्टूडेंट जब ये बाहर आ रहा है, तो मैंने आपको करंट का डायरेक्शन बता दी, करंट ऊपर जा रहा है स्टूडेंट, और ये अंदर जा रहा है. अब स्टूडेंट हाफ राउंड के बाद क्या होगा, देखो हाफ राउंड के बाद ये वाला P यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, तब ये वाला पोर्शन अंदर जाएगा स्टूडेंट. ये अंदर जाएगा स्टूडेंट, और जब ये अंदर जाएगा तो इसमें करंट नीचे हो जाएगी स्टूडेंट, उल्टा हो जाएगा करंट. मतलब ये जो सर्किट है स्टूडेंट, अगर ये पॉइंट है, इसमें हाफ साइकिल में करंट यहाँ जा रहा है, और हाफ राउंड में करंट ऐसे जा रहा है. इसी का नाम है स्टूडेंट AC, ऑल्टरनेटिंग करंट. इसमें भी स्टूडेंट ये जो कॉइल है स्टूडेंट, ये मैग्नेटिक फील्ड को काट रही है स्टूडेंट. देखो ऐसे ऐसे कट रही है. अब स्टूडेंट एक चीज और देखना, जब ये बाहर आ रही है तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे कट रहा है, ऐसे. अब ये ऐसे चला गया, अब ये अंदर जाएगी स्टूडेंट. अब ये मैग्नेटिक फील्ड को अंदर ऐसे काट रही है, देखो कटने का डायरेक्शन उल्टा है स्टूडेंट. देखो
ये वाला पोर्शन यहाँ था, ये बाहर आ रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे काट रहा है, ऐसे डायरेक्शन देखो। अब ये घूम के ऐसा चला गया, अब ये फील्ड को काटेगा कैसे, ऐसे देखो, डायरेक्शन उल्टा हो गया तो इसलिए करंट भी उल्टी हो जाएगी। दिस यू हैव टू अंडरस्टैंड स्टूडेंट। यही फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल का थीम है स्टूडेंट। ये देखो, ये है मोशन और ये है फील्ड स्टूडेंट। तो मैग्नेटिक फील्ड को ऐसे काट रहा है, देखो करंट ऊपर आ गई। अब मैं इसको ऐसे कर दूं, अब ये उंगली मतलब मैग्नेटिक, ये मोशन अंदर हो गया स्टूडेंट, मैग्नेटिक फील्ड को अंदर तरफ कट रहा है, फील्ड वही है, कट रहा है अंदर, देखो करंट नीचे हो गई, देखो स्टूडेंट करंट नीचे हो गया, देखो ये मोशन है, मैग्नेटिक फील्ड को ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड वही है, ऐसे कट रहा है बाहर तरफ, तो करंट ऊपर हो गया। अब वही चीज वापस मैग्नेटिक फील्ड को उल्टा काट रही है, ऐसे काट रही है, देखो ये उंगली अंदर, करंट नीचे हो गया स्टूडेंट। सी, इससे आपको ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा स्टूडेंट। और इसी का नाम है स्टूडेंट ऑल्टरनेटिंग करंट। इसका फिगर ऐसा होता है स्टूडेंट, ये करंट, ये टाइम, ये करंट बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम हो जाती है और फिर कम होके जीरो हो जाती है, फिर दूसरे डायरेक्शन में बढ़ती है स्टूडेंट, ये मैंने अभी बताया था आपको। दिस इज नोन एज ऑल्टरनेटिंग करंट। ऑल्टरनेटिंग करंट होता है स्टूडेंट। तो डैम में क्या होता है, ये टरबाइन होता है स्टूडेंट, यहाँ पे आके क्या होता है, जो स्टीम है वो इस टरबाइन को स्ट्राइक करती है, इससे ये घूमने लगता है स्टूडेंट। तो घूमने से क्या होता है, ये मैग्नेटिक फ्लक्स को काट रही है, तो फील्ड चेंज होता है, इसके कारण करंट आता है, ये एसी करंट होता है स्टूडेंट। दिस इज एसी करंट। इसको स्टूडेंट अपन डीसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, देखिए आप क्या करो, यहाँ पे पूरा रिंग ना लेके ऐसे हाफ रिंग लगा दो स्टूडेंट, और यहां ब्रशेस लगा दो C1 C2। अब कनेक्शन करो कंप्लीट। अब क्या होगा स्टूडेंट, ये ब्रश आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे, ये ब्रशेस हैं स्टूडेंट, कार्बन ये सॉरी ये रिंग आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे ब्रशेस के साथ स्टूडेंट। ये रिंग है R1, ये रिंग है R2। यहाँ तो वही सेम प्रोसेस होगा, लेकिन यहाँ पे करंट एक ही डायरेक्शन में जाएगी स्टूडेंट, क्योंकि ये ब्रश इंटरचेंज हो जाएगा स्टूडेंट। पहले का एक ही रिंग था, एक ही के साथ था, हमेशा इंटरचेंज नहीं हो रहा था। एक बार करंट यहाँ इसमें ऊपर जा रही थी, एक बार इसमें नीचे आ रही थी, और रिंग वही सेम था यहाँ पे, इसलिए करंट रिवर्स हो रहा था स्टूडेंट। अब आपको यहाँ पे स्टूडेंट डीसी मिलेगा इस टाइप। स्प्लिट रिंग कहते हैं इसको, जैसे डीसी मोटर में भी यही काम किया था स्टूडेंट, डीसी मोटर में। ये स्टूडेंट सिर्फ आपको समझाने के लिए, समझने के लिए है, इसको स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर कहते हैं स्टूडेंट। और ये डिवाइस स्टूडेंट अल्टीमेटली कहलाता है एसी और जनरेटर, ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेटर स्टूडेंट, इसी को कहते हैं स्टूडेंट। इसमें स्टूडेंट कॉइल को घुमाया जा रहा है। बाद में देखा गया कि अगर हम कॉइल को ना घुमा के मैग्नेट को घुमाएं, मतलब मेन तो फ्लक्स कटना चाहिए, तब भी स्टूडेंट उसमें करंट आती है। मीन इंस्टेड ऑफ रोटेटिंग कॉइल वी रोटेट द मैग्नेट। तो हमारे कार और बाइक्स में जो करंट जनरेशन प्रोसेस है स्टूडेंट, उसमें मैग्नेट रोटेट किया जाता है स्टूडेंट, और उसका नाम है कार, और उसमें जो करंट जनरेशन होता है स्टूडेंट बाइक्स में, उसका नाम है ऑल्टरनेटर। यही चीज है, सिर्फ क्या क्या करना पड़ता है स्टूडेंट, मैग्नेट उसमें रोटेट होता है और कॉइल फिक्स रहती है। तो मैग्नेट के कारण उसमें फ्लक्स चेंज होता है स्टूडेंट और करंट जनरेट होता है, उसका ऑल्टरनेटर कहते हैं स्टूडेंट, ऑल्टरनेटर कहते हैं। तो ये जो कॉइल घूमता है स्टूडेंट, इसकी एक फ्रीक्वेंसी होती है। तो अपने इंडिया में जो एसी है स्टूडेंट, उसकी फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज पर सेकेंड, सॉरी 50 हर्ट्ज मतलब 50 साइकिल पर सेकेंड। ये इंडिया में है स्टूडेंट, मतलब इसको आपको घुमाना पड़ेगा 3000 राउंड पर मिनट। ये इंडिया का है स्टूडेंट। अगर आप स्टूडेंट जिसमें ये कॉइल बना है, ये कॉइल एक सिलेंडर के ऊपर कॉइल बनता है, अगर इसी में आप 2-3 प्रकार के अलग अलग वाइंडिंग कर देते हैं, 2-3 प्रकार से, बाकी चीज सेम रहती है, तो अलग अलग प्रकार की 3 टाइप की करंट उसमें निकल सकती है स्टूडेंट एक ही में, और उसको कहते हैं फेज। आप घरों में देखे होंगे स्टूडेंट, जो बाहर से जो इलेक्ट्रिक वायर्स आती है वो 3 बड़े बड़े तार आते हैं, उसमें सब में फेज बोलते हैं, 3 फेज। तो फेज का यही है स्टूडेंट, क्या करते हैं लोग, जैसे ये कॉइल, ये सिलेंडर है स्टूडेंट, एक तार को ऐसे जोड़ा, एक तार को दूसरी तरफ से जोड़ा, एक वाइंडिंग को, एक और तीसरा वाइंडिंग बना दिया स्टूडेंट, तो 3 तरह के हो गए, बाकी चीज सेम है।
तो 3 तरह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, वही 3 फेज में जाती है स्टूडेंट, उसी को कहते हैं 3 फेज। तो एक एक फेज को वो डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं इसके बाद। और एसी का सबसे ज्यादा अच्छा फायदा है स्टूडेंट ट्रांसमिशन ऑफ पावर। द बेस्ट एडवांटेज ऑफ एसी इज ट्रांसमिशन में इसका फायदा होता है, बिकॉज ट्रांसमिशन ऑफ पावर और इलेक्ट्रिसिटी जो हमारे घर में आती है, इसका कारण क्या है इसमें, एडवांटेज क्या है, द वोल्टेज ऑफ एसी, voltage of AC can be increased or decreased। हम AC वोल्टेज को कम ज्यादा कर सकते हैं स्टूडेंट। तो कम ज्यादा करने से फायदा क्या होता है इसको समझ लो स्टूडेंट। और थोड़ा सा मान लो ये पावर स्टेशन है, यहां से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होकर हमारे घर में आ रही है, हाउस, ठीक है। तो ये जो तार है स्टूडेंट, इसका अपना एक रेजिस्टेंस होगा, तो इसमें एक पावर लॉस होता है स्टूडेंट I²R। मान लो करंट अभी पावर स्टेशन सप्लाई की जा रही है 50 एम्पियर, तो पावर लॉस स्टूडेंट इतना हो जाएगा इंटू R। हमने क्या किया, यहाँ पे वोल्टेज को अप डाउन करके करंट को कम कर दिया स्टूडेंट 25। अब पावर लॉस कितना हो रहा है 25²R। मतलब वोल्टेज वोल्टेज बढ़ा दिया, करंट कम हो जाएगी। और यहाँ पे क्या करते हैं, घर में वोल्टेज को अप करते हैं, वोल्टेज को डाउन करके करंट को फिर इतना ही कर लेते हैं। तो ये पावर लॉस से हम बच जाते हैं, पावर लॉस से हम बच, मतलब करंट को यहाँ से क्या करते हैं स्टूडेंट, कम करंट भेजा जाता है वोल्टेज को अप करके, और यहाँ वापस करंट को बढ़ा लिया जाता है वोल्टेज को डाउन करके। ये पॉसिबल एसी के साथ है स्टूडेंट। तो हम पावर लॉस से बच जाते हैं, इसलिए ट्रांसमिशन बहुत इजी होता है ऑन द एसी, एंड दैट इज व्हाई टुडे होल वर्ल्ड इज रनिंग ऑन द एसी स्टूडेंट। So this is a class student where we have tried to understand the EMI in greater depth. Okay student, thank you for today's class. We'll continue in the next.